Now I'm talking about chapter biotechnology and its application. Biotechnological application in agriculture and medicine. Biotechnology essentially deals with industrial scale production of biopharmaceuticals and biologicals. The application of biotechnology include therapeutics, diagnostic, genetically modified crops for agriculture, processed fruit, bioremediation, waste treatment and energy production. Plant, bacteria, fungi and animals whose genes have been altered are called genetically modified organisms, that is GMO. तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिनमें हम अपना मनपसंद जीन डालकर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना सकते हैं. बायोटेक्नोलॉजी हैव थ्री critical research areas. Number 1, to provide the best catalyst in the form of improved organism, usually a microbes or pure enzyme. Number 2, to create optimal condition through engineering for a catalyst to act. And number 3, downstream processing technique to purify the protein or organic compound. Now I'm talking about biotechnological application in agriculture. To feed the increasing population of the world, we need to enhance our food production. This can be done by applying some options like agrochemical based agriculture, organic agriculture, genetically engineered crop based agriculture. Most of agrochemical have harmful effect on the environment. Therefore, the best solution is to develop and use genetically modified crop, that is GM crop. GM crops are useful in many ways. Genetic modification has done changes to the phenotypic expression of the plant, such as crop become more tolerant to abiotic stress such as cold, drought, salt, heat, etc. Dependence on chemical pesticide is reduced, that is pest resistant crops. Post harvested loss are reduced. Efficiency of mineral use is increased in plant, that is preventing loss of soil fertility. Nutritional value of food is enhanced. Example, vitamin A enriched rice. Tailor-made plants are created by using GM plants to supply alternative resources to industries in the form of fuels and pharmaceuticals. Now I'm talking about production of transgenic crop tolerance to abiotic stress. Abiotic stress adversely affect growth, productivity and trigger a series of morphological, physiological, biochemical and molecular changes in plants. Crops are made resistant to various abiotic stress with the help of biotechnology. Some of the resistance crops are cold resistant crops, salt resistant crop, drought resistant crop and heat resistant crops. Now I'm talking about cold resistant crops. New strategies are developed that can be used to develop transgenic crop plants with the improved tolerance to cold stress. Mechanisms such as adjustment of lipid composition, accumulation of protective sugars has helped membrane to stabilize against freezing injury. Generally, genetically engineered tobacco have shown considerable decrease in chilling sensitivity. Now I'm talking about salt resistant crops. Development of salt tolerant crops for genetic engineering have focused on the strategies like increasing the plant's ability to limit the uptake of salt ion from soil, increasing the active extrusion rate of soil ions, and improving the compartmentalization of salt ion in the cell vacuole where they do not affect cellular function. Second, drought resistant crops. The plant hormone ABA, abscisic acid, regulates the plant's adaptive response to environmental stress such as drought, salinity, etc. Transgenic Arabidopsis plant constructively overexpressing the zeaxanthin expoidase gene ATZEP, which encodes an enzyme required for an initial step in ABA synthesis, showed increased tolerance to drought.
heat resistant crops. Heat stress is compounded by additional abiotic factors such as drought and salt stress. Some feature of plant that help in a development of heat resistant crops, like accumulation of osmoprotectants in plants, enhanced synthesis of secondary metabolite protects against oxidative damage. तो बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन अगर हम एग्रीकल्चर में देखें तो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन जो वर्ल्ड में बढ़ती जा रही है, इसके लिए फूड का प्रोडक्शन करना बहुत ज़रूरी है। इसको हम कई ऑप्शन से पूरा कर सकते हैं। एक तो एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर करके, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर से, या फिर जेनेटिकली इंजीनियरिंग क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर करके। ज़्यादातर एग्रोकेमिकल्स हार्मफुल इफेक्ट देते हैं इन्वायरमेंट में, इसलिए बेस्ट सॉल्यूशन है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का यूज़ किया जाए, जीएम क्रॉप का यूज़ किया जाए। जीएम क्रॉप कई तरीके से फ़ायदेमंद होती हैं और इनमें जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके कई चेंजेस किए जा सकते हैं जो उनके बाहर फिनोटाइप एक्सप्रेशन में भी दिखते हैं। क्रॉप ज़्यादा टॉलरेंट हो जाती है एबायोटिक स्ट्रेस से, उसे ज़्यादा ठंड हो, सूखा हो, सॉल्ट ज़्यादा हो सॉइल में या बहुत हीट हो, उससे ज़्यादा उसको फ़र्क पड़ता नहीं है। जो जीएम क्रॉप्स होती हैं वो केमिकल पेस्टिसाइड से के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं, पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप होती हैं, उनमें पेस्ट भी नहीं लगते और अलग से पेस्टिसाइड इसलिए डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा पोस्ट हार्वेस्टेड लॉस भी रिड्यूस हो जाता है, काफ़ी प्रोडक्शन मिलता है और जितना सीड डाला था उसके हिसाब से काफ़ी प्रोडक्शन मिलता है, लॉस बहुत कम होता है। मिनरल यूज़ करने की इसकी प्लांट की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है और इसके अलावा ये सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करके रखती है। ऐसा फूड जो जीएम क्रॉप वाला होता है उसमें काफ़ी न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल राइस की बात करें तो जो जीएम क्रॉप का राइस है उसमें विटामिन ए काफ़ी सफिशिएंट अमाउंट में होता है। तो जीएम क्रॉप की सप्लाई की करके ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज डेवलप किए जा सकते हैं और कमी को खाने की पूरा किया जा सकता है। ट्रांसजेनिक क्रॉप का प्रोडक्शन जो है वो एबायोटिक स्ट्रेस को झेलने के काफ़ी काबिल होता है। ऐसे प्लांट काफ़ी टॉलरेंट होते हैं और वैसे एबायोटिक स्ट्रेस से ग्रोथ पे, नॉर्मल प्लांट की प्रोडक्टिविटी पे फ़र्क पड़ता है, उसकी मॉर्फोलॉजी यानी बाहर से कैसा दिख रहा है, उसकी बॉडी के फंक्शन, बायोकेमिकल नेचर और उसके मॉलिक्यूल के चेंज पे भी। लेकिन जेनेटिकली मॉडिफाइड जो प्लांट्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं, रेजिस्टेंट होते हैं, वो एबायोटिक स्ट्रेसेस जो भी होती हैं उनको झेल लेते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी में काफ़ी हेल्पफुल है ये। और जैसे इसके एग्जांपल में हम देखें तो कुछ क्रॉप ऐसी बनाई गई है जो क्रॉप कोल्ड रेजिस्टेंट है, उसको बहुत ठंड से कोई नुकसान नहीं होता। सॉल्ट रेजिस्टेंट क्रॉप बनाई गई है, बहुत सॉल्टी हो सॉइल तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत सूखा हो, पानी की कमी हो तब भी ऐसी क्रॉप रेजिस्टेंट होती है जीएम क्रॉप्स। और हीट रेजिस्टेंट भी होती है, यानी कि बहुत गर्म हो तो भी उसे झेल लेती है। तो अगर हम कोल्ड रेजिस्टेंट क्रॉप की बात करें तो नई स्ट्रेटजीज़ डेवलप की गई हैं ट्रांसजेनिक क्रॉप बनाने में, जिसमें कोल्ड स्ट्रेस को झेलने की क्षमता है, ठंड को। और इनमें लिपिड का कंपोजिशन ऐसे एडजस्ट किया जाता है और शुगर ऐसे डाली जाती है मेम्ब्रेन में कि वो फ्रीजिंग इंजरी उसमें नहीं हो पाती, बर्फ़ जमने से कोई नुकसान नहीं होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जेनेटिकली इंजीनियर्ड जो तंबाकू बनाया गया है, टोबैको में चिलिंग सेंसिटिविटी नहीं होती है और उससे कुछ खास नुकसान नहीं होता है। ऐसी डेवलपमेंट सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप का भी जेनेटिक इंजीनियरिंग में किया गया है, उसमें कुछ बातों को ध्यान रखा गया है। एक तो प्लांट जो है वो सॉल्ट आयन की कितना ले रहा है सॉइल से, इस बात का ध्यान रखा जाता है कि ज़्यादा ना ले, और सॉल्ट आयन के वजह से प्लांट को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, नहीं होता है। और इसके अलावा जो सेल की वैक्यूल है उसमें आयंस जाके उसको इफ़ेक्ट ना करें, सेल के फंक्शंस पे कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट ना हो। जो ड्रॉट रेजिस्टेंस क्रॉप बनाई गई हैं उनमें प्लांट हार्मोन ABA रेगुलेट करता है प्लांट को एडवर्स कंडीशन के लिए, इन्वायरमेंट के स्ट्रेस के लिए, सूखे और सैलिनिटी के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रांसजेनिक एराबायोडोप्सिस प्लांट जो है उसमें बनाया गया है ओवर एक्सप्रेशन से जेंथाथिन एक्सपोआइडेज जीन डाला गया है इसमें ATZEP, जो इनकोडिंग करता है एंजाइम की, जो इनिशियल स्टेप में ABA सिंथेसिस में टॉलरेंस देता है सूखे के लिए और सूखे से कोई नुकसान नहीं होता है। इसी तरह हीट रेजिस्टेंट क्रॉप जो हैं
उनमें भी एडिशनल एबायोटिक फैक्टर से सूखे और सॉल्ट के अलावा हीट का फ़र्क ना पड़े, इसका ध्यान रखा जाता है। कुछ इससे फीचर डाले गए हैं इस प्लांट में जिससे कि हीट रेजिस्टेंस क्रॉप जो है वो आराम से तैयार कर दी गई है। इसमें ऑस्मो प्रोटेक्शन किया गया है प्लांट्स के अंदर इकट्ठा, जिससे कि उसे नुकसान नहीं हो हीट से। इसके अलावा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स से प्रोटेक्ट किया गया है, ऑक्सीडेटिव डैमेज से प्रोटेक्ट किया गया है। इस तरह की उसमें सिंथेसिस की गई है प्लांट में, क्रॉप में, जिससे कि बहुत ज़्यादा हीट होगी तो भी प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचेगा।